कि जो आत्मा है, आप सोचिए, क्या आत्मा सोच सकती है? क्या आत्मा देख सकती है? क्या आत्मा सुन सकती है? अगर ऐसा होता तो भाई जिसके कान नहीं है, जो मतलब बहरा है, उसको सुनाई क्यों नहीं देता? जिसकी आंखें नहीं है, उसको दिखाई क्यों नहीं देता? आत्मा, हम मिरेकल्स भी देखते हैं, yes, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनाज भी देखते हैं, हाँ हाँ, जहाँ तो वहाँ पे लगता है कि नहीं, कोई एक सुपरनेचुरल पावर तो है। सुपर नेचुरल पावर है। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म कॉन्शियसनेस ही, और उस कॉन्शियसनेस में जगत मिथ्या है। जो आपको दिख रहा है वो सब इल्यूजनरी क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। अभी Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important and thought-provoking subject. मैं कौन हूँ? Who am I? Am I a composition of elements and atoms which we call as body? या ये एक composition है subconsciousness का and thoughts का? डेथ क्या है? डेथ के बाद क्या होता है? ये आपके जहन में हमेशा ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। इन सवालों को डिस्कस करने के लिए I am very happy to have in my show J.C. Goel, who has written this a very interesting and thought-provoking book. I must say he has done a lot of research in writing this book, Hard Truth of Everything by J.C. Goel. So, welcome sir, Goel Saab on our channel. Thank you so much. Before we start, can you tell us something about yourself? I am a mind of human sapien which has evolved over millions of years, and now it is capable to explore the truth of this creation, matter, life, death, and consciousness, and even beyond. I think you have beautifully explained, given your introduction, which is in line with what the book that you have written. Yes. So, before moving forward, I am just wanting to ask to you that what motivated you to write on such a difficult subject? Actually, I never thought to write a book, but how this subject came, let me tell you, I was living a life of a normal person, having family, pursuing my career, but all of a sudden, I had a severe heart attack in the office. And I survived, but I survived with a different psyche. Many unanswered questions which human being is searching for thousands of years. Who I am, where I am, why I am here, where is God, who has created this world. All these questions started bothering me. Then I came across one quotation of Socrates: a life that is unexamined is not worth living. मतलब ये कि एक जीवन जिसका निरीक्षण न किया गया हो वह जीने के लायक नहीं है. तो दिस quotation has motivated me to devote rest of my life in exploring the truth, examining the life, death, consciousness, and everything you can say. So, can we say that it was a physical event in your life, जैसे आपने बताया heart Yes, attack, yes. which motivated you to think about the metaphysics of life? Yes, true. Okay. So, first of all, I'm very happy that you survived this medical event in your life, Yes. and that motivated you to think about the most interesting part of life. Yes. So, there is a when I read this book, Yes. so there is an audience over there who want to know about this topic, who want to watch this, read about it. उनको कैसे पता लगे? How would they know that कि Mr. Goel ने ये book लिखी है? How would they know about your book? Actually, this book is not for everyone. Okay. Because there are three types of things. One is believing, second is knowing, and third is understanding. Okay. क्या होता है कि बिलीव करना, विश्वास करना, जानना और समझना. तो it is very easy to believe and accept what the others are saying, what the scriptures are saying, what the gurus are saying, what the other parents are saying. That is very easy. That's why people don't try to know things. Right. They just accept it. Right. What has been told to them by the society. Right. For knowing, you have to have the information. You have to read the scriptures. You have to go through the philosophy, etc., etc. And the third point is the understanding.
कि आप उसको समझते कितना है, आपके पास इंफॉर्मेशन है. देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो आर हैविंग द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स and they are just repeating it, but whether they actually understand it or not. For example, somebody says that this is the way to drive the car. You accept it. Right. It is believing. When you have all the information how to drive a car, you are having only the information but not the experience. But when you drive yourself your car, then there is a understanding. You need not to make any effort to drive the car, because everything is set in your brain cells. Then that is the understanding. So the book is not for the people who are believing, just accepting. It is for the people who want to know and who want to understand. So you mean to say that the book is for the seekers? Yes, it is for the seekers, those who are really serious and curious to explore the truth. So this book is for truth seekers, philosophers, intellectuals, scientists, or you can say critical thinkers. So that is why I think this justifies your title. Yes. That is why you mentioned hard truth. Yes. So you are mentioning the word hard. Yes. In the title. Hard means difficult to understand. Difficult to understand. And it covers everything. Hard truth of everything means the whole truth. The whole truth, right? Not the partial, Okay. segmented, fragmented, distorted, twisted, or partial, or sugar-coated truth Right. prevailing in the market. So tell me one thing. Once you wrote, so you said that you never have written any book. So this is your Yes, first, yes. okay. And you also had this incident in your life, okay, this Yeah, medical. So how do you feel when you finished your book, when you when you wrote the last word and the full stop, and you completed the book, you know, because I am also an author, so I Yeah, know. yeah. So when you completed the book, what was the one feeling that you got? I got the feeling that because I was exploring, I have gone through hundreds of books, various types of meditation. When I wrote this book, I got a satisfaction that I have shared my understanding with the world. I Okay. was not bothered whether people will read it or not read it, but one thing was sure, that it is going to help those people who are truly serious in exploring the truth and understanding the truth. Okay, so not talking about your book, because this is why we are here. So you speak about time and space in your book. Yes. You speak about subconscious mind in your book, Yes. and you speak about that body is an amalgamation of atoms. Yes. Can you please, in a simple words for my audience, explain it to us? Yes. If you see, in this world, nothing can exist without space. Right. Matter cannot exist without Without space. space, right. For matter to exist, space is required. Right. So matter, space, and time, all these three things emerged from the Big Bang simultaneously, because matter cannot exist without space, and matter needs time to move in space from one place to other. So simultaneously time also got created. Even Einstein says matter, space, time is one. Okay. Matter, space, time is one. Yes. Can you explain it a little further for my for more understanding? Yes, because one cannot exist without the other. Okay, so you mean to say time and space are in union? Yes. Okay. Because it takes time for movement in space. So everything in this universe is in matter, made of matter, in space and time. In space and time. Yes. So like we say that when we realize ourselves as a body, then we are also in this time and space phenomena. Yes, yes, because it is a matter, body is a matter which is existing in the space, and everything is happening in the time. So at this time and at this place. Yes, you can say like At this time and at this place. that. Yes. And but when we talk of subconsciousness, it is not dependent on time and space. No, now I'm coming to the another point to make Right. it very simple. Yes. Because as a human being, if you closely observe, we live in two worlds. Right. One is physical world, Right. and another is psychological world. Right. One is outside the world, and another is inside the world. Right. Can inside world exist without
outside world? No. Can outside world exist without inside world? No. That is a question. I will answer later. Yes, okay. Yes. So similarly as matter space time exists in the outer world, matter space time exists in the psychological world also. Okay. Yes. Now just listen. Thinking is a phenomena which differentiate us from other living things, Okay. because we can think. Okay. And as thinking takes place, psychological space is getting created. Okay. And when psychological space is getting created, psychological time is also getting created. Just a minute. So it will become, I think, more burden for my Yeah, audience. yeah, So yeah, let's pause a bit. Yes, in simple words, Huh. we create a psychological space and time because nothing can exist without space. For moment of thought, you need psychological space. So you mean to say, if I अगर मैं इसको थोड़ा सा easy करूँ, हाँ. अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में सोच रहा हूँ. हाँ, वो स्पेस क्रिएट कर रहा है कि मैं 10 साल पहले ये था, हाँ. 10 साल के बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा. हाँ. तो ये 10 साल पीछे का और 10 साल आगे का हाँ. स्पेस क्रिएट हो गया, हाँ. विच इज क्रिएटेड बाय योर थॉट. तो वो जो थॉट बना, फिर वो स्पेस टाइम में रह गया. हाँ, क्योंकि बिना स्पेस के कोई भी चीज नाइदर इन द फिजिकल वर्ल्ड नॉर इन द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट. ओके. सो इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है. तो फिर क्या, जैसे बॉडी तो एक टाइम के बाद जब डेथ हो जाती है, स्पेस टाइम से बाहर हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, तो थॉट रह जाता है स्पेस टाइम में. थॉट बेसिकली क्या है कि थॉट इज गेटिंग जनरेटेड बाय फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन सेल्स. Firing of neurons in, I will have to, yes, I will have to break it up. Firing of neurons in our brain. ब्रेन सेल्स. Okay, that means कि मैं ब्रेन living होते हैं, उनकी फायरिंग से थॉट जनरेट होता है. Okay. थॉट से फीलिंग जनरेट होती है, इमोशन जनरेट होते हैं, बिकॉज फीलिंग एंड इमोशंस आर नथिंग बट कंडेंस्ड थॉट्स ओनली. So that means neurons के फायर होने से थॉट जनरेट होता है, उससे फीलिंग जनरेट होती है. Yes. तो दिस बिकम्स ए लिंक बिटवीन फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, मे बी बॉडी एंड थॉट. Yes, you can say. Yes. Living body and thought. Otherwise, emerging of thought is a material process. Emerging of thought is a material process, right? Yes. Yes. But what thought creates is psychological. Is a psychology. Yes, this is a very amazing thing that you, and this is also mentioned in your book, Yeah, right? yeah. So I think then the very important thing which I also I read your book is the scientific backup or the scientific evidence which you have covered. आपने ये रिसर्च कैसे की, क्या क्या की, थोड़ा सा बताएंगे? यस यस. जब मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अब मुझे अपना जो बचा हुआ जीवन है वो सच्चाई की खोज में लगाना है, तो बहुत से लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि जी आप ऐसे करो, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने शास्त्र पढ़ो, गुरु के पास जाओ, कोई गुरु बना लो, मेडिटेशन करो, तो आपको ज्ञान हो जाएगा. तो फिर मैंने सबसे पहले एक बुक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय योगानंद परमहंस. मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी. बहुत उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया भगवान को, कैसे वो भगवान में विश्वास करते हैं. और उसके बाद जो है फिर मैंने उनका सारा लिटरेचर पढ़ा. अच्छा. उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन. साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन. हाँ. Okay. वो बेसिकली कमेंट्री है भगवत गीता पे. Okay. वैसे तो भगवत गीता पे करीब 700 लोगों ने डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ कमेंट्री लिखी है. तो फिर मैंने कहा कि फील किया कि भाई गीता में बहुत बड़ा ज्ञान है. तो मैंने विवेकानंद की गीता भी पढ़ी, महात्मा गांधी की गीता भी पढ़ी, इस्कॉन की गीता भी पढ़ी. सारी गीता पढ़ने के बाद फिर भी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ. मैंने कहा मुझे और डीपर जाना है. तो गीता जो निकली है वो उपनिषद से निकली है. Right. तो फिर मैंने उपनिषद सारे पढ़े, बुद्धिज्म पढ़ा. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ और आई एम बिकमिंग मोर ऑफ ए डिवोटी. Okay. मैं डिवोटी बन रहा था. जैसे कि मेडिटेशन करना, भगवान के बारे में सोचना, लिटरेचर पढ़ना. फिर मैंने सोचा कि भाई मैं तो सच्चाई ढूंढने निकला था. अगर मैं डिवोटी बन गया तो सच्चाई पे कभी भी डिवोटी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है. हाँ, करेक्ट. कि भाई भगवान है, रैशनलाइजेशन कम हो जाती है. हाँ. तो वो क्या है, उसको खोजना बंद कर देता है. करेक्ट. तो इसलिए मैंने कहा भाई मुझे तो खोजना है. आई हैव टू सर्च एंड एक्सप्लोर द ट्रूथ एंड द होल ट्रूथ.
तो फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि अभी तक फिलोसफर्स जो है उन्होंने बड़े तर्कशील तरीके से जो है अपनी फिलॉसफी दी है, जी, तो उसको अपडेट करने के लिए आई हैव गोन थ्रू ऑल द फिलोसफीज, जितने भी फिलोसफर्स थे सबको मैंने पढ़ा। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, Correct. लेकिन फिलॉसफी कहीं भी आगे नहीं जा रही, नहीं जा रही। फिलॉसफी वहीं आकर के अटक गई है। तो फिर मैंने कहा कि भाई मुझे जैसे फील हुआ, मैंने पहले आपको बताया कि वी ह्यूमन बींग्स लिव इन टू वर्ल्ड, वन इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड अनदर इज साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड आई कैनॉट अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, बिकॉज साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड लाइक एनीथिंग। साइंस ने हमारे के मैटर को अच्छी तरह समझ लिया है, जो 4 फोर्सेज उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और वो कैसे रिएक्ट करके चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वो हमने समझ लिया। अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोग कैसे देख पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमने, साइंस ने मैटर को और वो जो 4 फोर्सेज उस मैटर पे काम कर रहे हैं उनको समझ लिया है। हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कैसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है, और फिर वहाँ जाके वो दोबारा से जो है, इसलिए मैंने जो शुरुआत की अपनी रिसर्च की, जो एक नया तरीका था सच्चाई खोजने का, वो पहले मैंने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स ने कहाँ तक नेचर ऑफ रियलिटी को बता दिया है, न्यूरो साइंस कहाँ तक पहुँच चुकी है, और ब्रेन सेल के बारे में कहाँ तक एडवांसमेंट हो चुकी है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है, और इवॉल्विंग डीएनए ने किस तरीके से मिलियंस एंड मिलियंस न्यू स्पीसीज क्रिएट किए हैं। तो इसलिए ये बुक जो स्टार्ट होती है, साइंटिफिक जो अभी वो सच्चाई है उसको बेस बना के उसके आगे फिर मैंने मूव किया इनर वर्ल्ड की तरफ। तो फिर तो बहुत टाइम लगा होगा इस सारी बुक्स, गीता आपने सारी पढ़ी हैं, साइंस के बारे में आपने पढ़ा है, ये बेसिकली जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसका कारण एक ही है, क्यूरोसिटी। कि भाई मेरे अंदर जो फायर थी क्यूरोसिटी जानने की, मैं किताबें ढूंढ के लाता था। आई वॉज पोस्टेड इन मुंबई, तो मैं चर्च गेट पे जाता था, वहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं, तो मैंने कोई 100 साल पुरानी 150 साल पुरानी किताबें अपने सब्जेक्ट पे ढूंढी, पढ़ी, जितनी भी, चाहे वो जैन योगा पे थी, चाहे वो फिलॉसफी पे थी, तो वो क्यूरोसिटी ही मुझे आगे 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 लेके जाती रही। दैट वाज द ओनली फोर्स। तो क्या मैं ये मानूं कि अब आपकी वो क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई है विद दिस बुक? विद दिस बुक, विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई कैन से, बुक में जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जहाँ एक लेवल तक पहुँच चुकी है, उसके बाद फिर एक अलग ही वो है, जब आपको सच्चाई पता चल जाती है तो आपके अंदर से भय खत्म हो जाता है, आपके अंदर से लालच खत्म हो जाता है, आप कहते हैं ये जीवन है, इसको एंजॉय करो। तो चलो मैं वापस आता हूँ उस टॉपिक पे कि आपने बोला ये बुक सीकर के लिए है जी। अब मान लो वो सीकर है, वो सुन रहा है आपको, हाँ। और उसने कहा कि ठीक है, दैट मीन्स दिस बुक इज फॉर मी। अब जब वो सीकर ये बुक पढ़ेगा, उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग। जब आपको सच्चाई पता चल जाती है, बेसिकली क्या होता है कि हम अपने थॉट्स में, इमोशंस में इतने खो जाते हैं कि हम सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ। और उसी में या तो घुट घुट के जो है दुखी होते हैं, या फिजिकल चीज़ों को एंजॉय करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, और फिर हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये बुक पढ़ने के बाद आपको बेसिकली क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी जिसमें कोई डिवोशन नहीं है, कोई आपको फॉलो नहीं करना है। इट विल ब्रिंग म्यूटेशन इन योर ब्रेन सेल्स एंड यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में क्या है। और उससे क्या है कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इज एन एक्शन इन इटसेल्फ। तो फिर आप जो है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक शांतिपूर्ण जो है पीसफुल लाइफ यू कैन हैव, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? हाँ, यही कि भाई वो खुश रहे। तो मान लो अब सीकर, जैसे कहीं ना कहीं मैं भी एक सीकर हूँ, मैं भी मुझे भी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो हमें वो इंटरेस्ट आ ही जाता है, हमारी वो भी साइंस में आ जाता है। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए या सबके लिए एक सवाल है, आत्मा, सोल। आपने गीता पढ़ी, गीता में तो काफ़ी मेंशन है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस?
आत्मा, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर सच्चाई जाने तो किसी टाइम में मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें आत्मा लिखा गया है, किसी ने इसको सोल कहा है, प्लेटो इसको साइकी बोलते थे, और आज जो साइंस है वो इसको कॉन्शियसनेस बोलती है। अच्छा, चेतना, जो एक हिंदी में शब्द यूज होता है, तो ये कॉन्शियसनेस है बेसिकली। अगर आप देखोगे थोड़े से ध्यान से, तो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जो हम आम आदमी समझता है कि एक जीवित है, एक लाइफ है और एक मैटर है। अगर लाइफ का मतलब क्या होता है कि लाइफ का मतलब होता है कि वो चीज़ रिस्पोंड कर रही है अपने एनवायरनमेंट को जी, अपने को बचा रही है, जीवित रहना चाहती है और ग्रो करना चाहती है जी। तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या कोई भी जीवित चीज़ है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो है एक सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं। और वो कोशिका रिस्पॉन्ड करती है, वो मल्टीप्लाई होती है, वो डिसीजन ले सकती है कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, रिजेक्ट करती है, ऑप्शंस भी हैं उसके पास। तो वो जो सेल है बेसिकली वो जीवित चीज़ है, वो कॉन्शियस है। उसकी वजह से जो ऑर्गन है, मल्टीपल सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, तो वो ऑर्गन कॉन्शियस है। और मल्टीपल ऑर्गन मिलके एक बॉडी बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं या एनिमल बॉडी बनाते हैं, वो कॉन्शियस है। लेकिन साइंस ने आज तक कोई ऐसा पता नहीं, एविडेंस नहीं है कि हमारे ब्रेन में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो मरने के बाद निकल जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हाँ, पर कुछ हमने सुना कि जैसे कुछ रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं कि जब किसी की डेथ होने के बाद या वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। यस, एक तो बहुत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि एक बार एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक आदमी मरने वाला था, तो उसको शीशे में बंद कर दिया। शायद आपने भी सुना है, वो टूट गया, तो वो शीशा टूट गया, आत्मा निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए साइंस में क्या होता है कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स 1000 टाइम्स। एक मिनट, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा सा सबको नहीं पता होगा। नहीं, अभी इसके बाद आएंगे। तो क्या होता है कि भाई अगर ऐसा हुआ कि शीशा टूट गया, तो व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट हैज नॉट बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अच्छा, राइट। अभी कोई इसका एविडेंस नहीं है। आप बॉडी को अगर ग्लास में फिट कर दें और जैसे ऑक्सीजन खत्म होगी बॉडी विल डाई। करेक्ट। देयर आर पीपल जो पता है हमें कि 10 मिनट के बाद मरने वाले हैं, तो क्या होता है कि वो शीशा नहीं टूटेगा। आप ये एनिमल पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि एनिमल भी कॉन्शियस है, उसके भी इमोशंस हैं, उसकी भी फीलिंग्स है, उसमें भी सेंसेस हैं। लेकिन ये जो कहावत चली आ रही है या जो बात चली आ रही है, ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। अब आपका जो सेकंड पॉइंट था नियर डेथ एक्सपीरियंस, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये सब क्या होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे होते हैं, ऑपरेशन टेबल पे होते हैं। और आदमी 8-10 मिनट के बाद जो है वापस आ जाता है और फिर वो बताता है कि जी वो एक टनल था, टनल के पीछे लाइट थी, मैं वहाँ गया तो मेरे जो लोग माता थे, पिता थे, गुरुजन थे जो मर चुके थे, उनसे मिला और फिर मैं वापस आ गया। और अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए, क्या इन सब जिनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ वो सब सेम स्टोरी बताते हैं? सबकी सेम स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी हम सुनते आए हैं और हमारे ब्रेन सेल्स में है। एक्चुअल में क्या होता है कि क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया साइंस ने, क्योंकि हार्ट बीट बंद हो गई। लेकिन हाउ यू कैन से कि ऑल द ब्रेन सेल्स आर डेड? ब्रेन सेल डेड नहीं हुए। अभी देखिए ये मेरी आंखें हैं, ये सेल से बनी हुई हैं। अगर ये आंखें निकाल ली जाएं तो ये 6 घंटे तक जिंदा रह सकती है और किसी दूसरे की आंख लग सकती है एंड दे कैन कंटिन्यू टू हैव फंक्शन एंड विजन। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेन सेल पूरी तरह डेड नहीं हुए होते और वो दोबारा से उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो वो जो उसने सपना जो देखा हुआ होता है, जो ऑलरेडी उसके ब्रेन सेल्स में होता है, वो उसको रिपीट करता है। और मुझे लगता है कि अगले 20 साल में, 50 साल में जैसे साइंस तरक्की कर रही है, तो न्यूरो साइंस विल बी एबल टू एस्टेब्लिश कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो निकल के चली जाती है, या कोई मतलब ब्रेन है, अगर ब्रेन कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं करता है तो वो अलग से कैसे हो सकती है। फिर एक और पॉइंट इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो आत्मा है, आप सोचिए क्या आत्मा सोच सकती है? क्या आत्मा देख सकती है?
क्या आत्मा सुन सकती है? अगर ऐसा होता तो भाई जिसके कान नहीं है, जो मतलब बहरा है, उसको सुनाई क्यों नहीं देता? जिसकी आंखें नहीं है उसको दिखाई क्यों नहीं देता? आत्मा बेसिकली क्या है कि जो आत्मा है, ये आत्मा का कंसेप्ट क्यों आया? अब जो जानवर है वो तो आत्मा के बारे में बात नहीं करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सोचना सीख लिया है, और जब हम सोचते हैं तो सोच के हम इमेजिन करते हैं, और जब इमेजिन करते हैं तो हमारा क्या क्या इंसान कभी भी मरना नहीं चाहता। इवन जो जिसकी इच्छा है ना कि वो स्वर्ग में जाए, वो भी मरना नहीं चाहता। राइट। तो वो क्या सोचता है कि भाई आई विल कंटिन्यू टू लिव। इसीलिए मम्मीज बनाए कि भाई हम जो है ना, जो कुछ हमने एक्यूमुलेट किया है साइकोलॉजिकली या फिजिकली, दैट विल बी रिवार्डेड इन द नेक्स्ट लाइफ। तो हम मरना नहीं चाहते हैं, तो हमने सोचा है कि भाई जब आदमी मर जाता है तो इसमें से कुछ निकल के जाता है। उस जमाने की बात है, आज से 2000-5000 साल पहले। तो हमने एक नया कंसेप्ट बनाया कि भाई ये कोई आत्मा है, कोई ऐसी चीज़ है जो निकल के जाती है और दोबारा किसी नई बॉडी में एंटर करती है, और फिर जो है कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, और फिर रीबर्थ होता है, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो जब ये इशू स्टार्ट हुई तो 5 करोड़ लोग थे, आज 800 करोड़ लोग हैं। मतलब ये आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई पशुओं में आत्मा नहीं है, एंड दे आर किलिंग एंड ईटिंग देम फॉर टेस्ट। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि भाई आप में आत्मा है और उनमें आत्मा नहीं है, जबकि वी आर सिमिलर, अवर डीएनए इज सिमिलर। सिर्फ फर्क इतना है क्योंकि हम सोच सकते हैं, और हम सोच सकते हैं वो जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसका कारण क्या है कि हमारे ब्रेन जो है ना वो इवोल्व हो गया है। उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और वो सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, थॉट जनरेट होता है, इमेजिनेशन जनरेट होती है। अभी जो बाकी पक्षी हैं या पशु हैं जो सोच सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सोच है, तो उसमें भी न्यूरॉन्स ही हैं। मतलब न्यूरॉन्स के बगैर ब्रेन नहीं होता। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन जो है वो किसी जीव में पाए जाते हैं तो वो है हाथी। अच्छा। हाथी में क्या है कि हमारे से 3 गुना न्यूरॉन्स हैं, 3 गुना न्यूरॉन्स हैं। तो उसका थॉट बहुत ज़्यादा होगा उसके? हाँ, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा थॉट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका वजन 5000 किलो है। वो 5000 किलो की बॉडी को मैनेज कर रहा है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बॉडी में जो 1/3 न्यूरॉन है वो आपकी बॉडी को मैनेज कर रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, और बाकी 2/3 जो है वो सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग का काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब अगर कोई पतला आदमी है तो वो ज़्यादा सोच सकता है? नहीं, पतला आदमी नहीं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो ब्रेन साइज पे है। आज से 2 लाख साल पहले ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो सिर्फ 400-500 ग्राम का था, आज वो 1.5 किलो का है। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन का वेट बढ़ गया है हाँ सालों जी, में? पिछले 2 लाख सालों में बढ़ा है, तभी हम होमो सैपियंस हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन का साइज बढ़ा तो इसलिए हमारी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ी, इसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ी। जैसे मोबाइल होता है ना, हर एक की अलग अलग प्रोसेसिंग पावर है, तो ऐसे ही तो तभी वो दिखाते हैं कि आगे जाके सर इतना बड़ा हो जाएगा और शरीर छोटा। हाँ, तो वो उसका वो है। अभी देखिए हमारे जो नियरेस्ट रिलेटिव हैं वो है चिंपैंजी। 98.2% डीएनए सेम है हमारा। 98.2%? यस, वैसे 90% सारे एनिमल से मिलता है। अच्छा। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, और क्योंकि पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं तो 50% पौधों से भी मिलता है। अच्छा। मतलब अगर जो बनाना आप खा रहे हो 50% डीएनए इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग योर बॉडी। अच्छा, ओके। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग योर बॉडी। तो मैं जो कह रहा हूँ, जो चिंपैंजी है उसमें न्यूरॉन हमारे से 1/3 है। हमसे ओके 1/3? हाँ, वो बॉडी तो मैनेज कर पा रहा है लेकिन वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहा। अच्छा। तो इट इज़ ए गेम ऑफ न्यूरॉन्स। अब कॉकरोच है, उसमें 1 लाख न्यूरॉन है। अब मधुमक्खी है, उसमें भी बहुत न्यूरॉन्स हैं, तभी वो कलर पहचान लेती है। तो इट इज़ ए गेम ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो थॉट है, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, रीबर्थ, ये सब इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड। अब इसके पीछे लॉजिक भी दे देता हूँ कि क्यों क्रिएट किए गए। क्योंकि हमें डर लगता है, हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। तो आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ ग्रीड कि भाई हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है
तो हम भगवान से प्रार्थना करें। वी हैव क्रिएटेड ए साइकोलॉजिकल स्पोर्ट। हमने एक इसीलिए हमने भगवान को ना बाहुबली बनाया है, कभी उसके 2 हाथ, फिर 4 हाथ, फिर 6 हाथ, सो दैट ही और शी कैन प्रोटेक्ट अस। पर इसी दुनिया में, मतलब इसी वर्ल्ड में, ये देखो, ये जो आप कह रहे हो ये साइंटिफिकली फैक्चुअली ठीक लगता है। हाँ। मगर हम अपनी लाइफ में हम मिरेकल्स भी देखते हैं, Yes. अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनाज भी देखते हैं। हाँ, हाँ। जहाँ तो वहाँ पे लगता है कि नहीं, कोई एक सुपरनेचुरल पावर तो है। सुपर नेचुरल पावर है, मेरा कहने का मतलब ये, एक पावर तो है जिससे बिग बैंग जनरेट हुआ, लेकिन ये एक वन मोमेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जैसे बिग बैंग हुआ, अब ये नहीं पता लगाया जा सकता बिग बैंग क्यों हुआ, उससे पहले क्या था, किसने किया, लेकिन जो बिग बैंग हुआ उसमें पहले उससे एक चीज़ स्टार्ट हुई बिग बैंग से। मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो कि यूनिक है, उसका नाम दिया मैंने बिकमिंग। क्या? बिकमिंग, ओके। हाँ, कुछ बनना। तो हुआ क्या कि जैसे बिग बैंग हुआ तो लावा था, फिर उसमें क्वार्क बने, इलेक्ट्रॉन बने, हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, हाइड्रोजन हीलियम से जो है हमारे तारे बने, स्टार बने। जब स्टार जो है सुपरनोवा हुआ, तारे की डेथ हुई, तो उसमें ये सारे एलिमेंट जनरेट हुए जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 118 एलिमेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जो आपने ये सोने की अंगूठी पहनी हुई है, ये 4.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये जब सोना बना था, सोना उतना ही है, हाँ। तो ये उतने ही पुरानी है। तो अब क्या है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया उन्होंने? वाटर बना दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस में भी सल्फर ने मिलके सेल बना दिया। सेल, कोशिका, जिससे आपकी बॉडी बनी है। फिर जैसे इसमें अमोनिया की एंट्री हुई, तो उससे इसमें मेमोरी आ गई। अच्छा, अमोनिया मेमोरी के लिए रिक्वायर्ड होता है? हाँ, मतलब शायद नाइट्रोजन के बगैर वो नहीं थी। नाइट्रोजन के एडिशन से जो है मेमोरी आ गई। और समुद्र के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, तो वहाँ जीव पैदा हुआ। तो मतलब अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो मेमोरी नहीं होती? हाँ, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस जो बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, चांद तारे भी हैं, सब कुछ है, इसमें एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरी अदर थिंग्स। नथिंग इज इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंसिंग एवरी अदर थिंग्स। यू आर इन्फ्लुएंसिंग मी, आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू। और वैसे जो थॉट की आप बात कर रहे थे ना, तो थॉट क्या है कि आपका थॉट आपको तो इम्पेक्ट कर ही रहा है, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरे सिस्टम में, वो बाकी सबको भी इम्पेक्ट कर रहा है। जैसे हिटलर ने एक हेट का थॉट दिया, उसने करोड़ों बंदे मार दिए। मदर टेरेसा आई, उसने एक काइंडनेस का थॉट दिया और उसने बहुत लोगों की सेवा की। तो हम जैसे अपने इसमें एक बात करते हैं वाइब्रेशंस के, आप एक वाइब्रेशन कैरी करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो नेचुरली। हाँ, तो अच्छा रहता है। एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग एवरी अदर थिंग। इवन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज प्रूव्ड बाय दी क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको प्रूव कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसका दूसरा पार्ट हो सकता है किसी दूसरी उस पे हो, गैलेक्सी पे हो, और ये पार्ट जब ऐसे घूमता है तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये प्रूव कर दिया, इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है 2000। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सोलमेट वाली थियरी है। हाँ, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना तुम्हारा सोलमेट कहीं ना कहीं। हाँ, तो मतलब हर चीज हर दूसरी चीज से कनेक्टेड है। होता क्या है कि आत्मा नहीं निकलती है, कॉन्शियसनेस चली जाती है। जब मेरे सेल डेड होते हैं तो ऑर्गन डेड हो जाता है। तो कॉन्शियसनेस चली जाके फिर कहाँ जाती है? हाँ, उस पर भी आता हूँ। जब मेरे सेल डेड होते हैं तो मेरा ऑर्गन डेड हो जाता है, वो ऑर्गन फेलियर हो गया। ओके। फिर दूसरे ऑर्गन फेल हो जाते हैं जी, जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं जी, और फिर बंदा मर जाता है। और फिर वो जो ऑर्गन फेल हुए, जो सेल डेड हुए, वो डेड सेल रीजनरेट होके कहीं और नया इंसान बनाते हैं, या नया जानवर बनाते हैं, या कोई नई चीज बनाते हैं। तो ये अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रीअपीयरेंस, मतलब जनरेशन, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और ये सब बिग बैंग में चल रहा है।
अब आपका कुछ क्वेश्चन था बीच में। ये कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है? हाँ, कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है। अब कॉन्शियसनेस मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है। नंबर वन, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस को सिंपल वे में आम आदमी की भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और आज साइंस भी इस पे काम कर रही है। मतलब अभी आज से जब तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी तो साइंस कभी कॉन्शियसनेस को मानती नहीं थी, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो नाउ दे एक्नॉलेज देयर इज ए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। ओके। आप उससे मोबाइल चलाइए, आप उससे ट्यूबलाइट जलाइए, आप उससे फैन चलाइए, जैसी मशीनरी है, लेकिन उसके पीछे काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आपका मोबाइल भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा, आपका ब्रेन भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप ये समझिए, ये कॉन्शियसनेस है। अब ये कहाँ जाती है? आपने एक स्विच बंद कर दिया, दूसरे में चली गई। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वहाँ वो चीज़ें वो चल रही हैं। तो अगर मेरी बॉडी से कॉन्शियसनेस चली गई तो मेरे सेल डेड हो गए, लेकिन कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर। तो कॉन्शियसनेस फिर किसी और कॉन्शियसनेस के साथ मिलके एक वो भी बना सकती है? बेसिकली देयर इज ए कॉन्शियसनेस ओनली। जैसे उसने कहा ना, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म कॉन्शियसनेस थी, और उस कॉन्शियसनेस में जगत मिथ्या है। जो आपको दिख रहा है वो सब इल्यूजनरी क्रिएट हो रहा है। करेक्ट। अभी आप ये देखिए, वही सब कुछ है। अभी मैंने आपको बात की थी ना कि फिजिकल वर्ल्ड, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, जब आप कॉन्शियस नहीं होते, आप डीप स्लीप में हैं, वेयर इज योर वर्ल्ड? आप क्या हैं? वो तो माइंड में ही है फिर सबकॉन्शियस। नहीं, आप क्या हैं उस टाइम में? डीप स्लीप में तो कुछ डीप नहीं है। स्लीप में आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, दुनिया कौन है, दुनिया कौन है और कहाँ क्या है। करेक्ट। उसका रीजन ये है कि उस वक्त ब्रेन में जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, और जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ती है तो सपने आते हैं। जब और तेज बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी, मैंने बुक में भी लिखा है, तो आप जागृत हो जाते हैं, तो आपको थॉट फुल फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब आदमी पूरा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन डीप स्लीप में भी कॉन्शियसनेस है, आपके ऑर्गन्स में कॉन्शियसनेस है, आपका सांस चलता रहेगा, आपको भूख लगेगी, वो न्यूरॉन से, हाँ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका काम करता रहता है, लेकिन ब्रेन डेड नहीं होता। ब्रेन में जो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी वो 4, 5, 6 होती है। जब वो 15 से के आसपास हो जाती है तो फिर आपको सपने आते हैं। तो ये जो सब कुछ है ना, आप अगर साइंटिफिकली देखें और अपने को अपडेट करें। मैंने पहले आपको कहा कि फिलॉसफी इज नॉट प्रोग्रेसिंग, क्योंकि वो अपडेट नहीं कर रही है। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शरीर 5 चीज़ों का बना है, जल, वायु। अब हमने तो जल को भी देख लिया तोड़ के, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम जो है जल से ऑक्सीजन बना सकते हैं, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन मिला के हम जल बना सकते हैं। हमें पता है कि वायु में क्या क्या है, कितना नाइट्रोजन है, कितना क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं, कितना पोल्यूशन फैल रहा है। तो वो मतलब अब वो चीज़ अपडेट नहीं की है। करेक्ट। समस्या ये है कि हमने अपडेट नहीं की है, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस सिस्टम है या सोशल सिस्टम है वो पुराने ठर्रे पर ही चल रहा है। इवन जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी उसको साइंस की तरीके से नहीं देखते। वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इतना कुछ समझ लिया है कि हमने यूरेनियम में पता लगा लिया कि उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं। अगर हम उसको हिट कर दें तो न्यूक्लियर बम बन सकता है। 5 लाख लोग एक ही झटके में, जब एटम बम गिरा जापान में तो मरे थे, तो 5 लाख आत्माएं 1 मिनट में वो बाहर निकल गई। तो ये अभी हो सकता है कोई ऐसा महारथी आए जो ऐसा न्यूक्लियर बम फोड़े कि दुनिया ही खत्म कर दे। तो इसलिए मतलब देखो, मैं ये नहीं कहता व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बहुत है। अभी सोशल सिस्टम है, उसका अपने फ़ायदे हैं, और जो रिलीजियस सिस्टम है, मतलब नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग। और आई नहीं, हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं हमारे सामने और जो आपने रिसर्च किया, जो फैक्ट, मैं उसके जो सच्चाई अब पता लग चुकी है, उससे तोलकर हर चीज़ को देखता हूँ। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वो हो गई, यहाँ तक तो साइंस पहुँची, फिर मुझे अपनी जर्नी के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, वो था कि मैं अपने अंदर झांक के देखूँ।
और उसके लिए मेरे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि ना मेरे पास टेलीस्कोप थी, ना मेरे पास माइक्रोस्कोप थी, ना तो मेरे knowledge पास, ही है। पार्टिकल एक्सीलेटर था। मेरे पास था मेरा अपना माइंड। माइंड। तो फिर मैंने अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं कैसे अपने माइंड की एक एक परत को खोलता जाऊं और उस जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जैसे फिजिकल वर्ल्ड बना है वैसे बना है उसको स्टडी करूं। उसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा। फिर मैंने किताबें सब पढ़नी बंद कर दी क्योंकि पूरा फोकस इनर साइड में था। ओके सर, ये बहुत ही टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि स्टार्ट में हमने बोला था इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है, आप इस बात को एग्री करोगे। हाँ। तो नटशेल में आप पर्पस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? यस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वी आर पार्ट ऑफ दिस होल क्रिएशन। जो हमारा पर्पज है वही एक पक्षी का पर्पज है, वही एक प्लांट का पर्पज है। तो माई पर्पज ऑफ लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पर्पज ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स और द होल क्रिएशन। तो पर्पज यही है कि हमें इस क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करना है और ताकि ये क्रिएशन जो है आगे बढ़ती रहे और खुश रहना है। खुश रहना है, राइट। तो कोई मैसेज है जो आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूँगा कि ये लाइफ है, बी ऑलवेज क्यूरियस। बी ऑलवेज, हाँ, क्योंकि ये क्यूरोसिटी है जो मुझे इस अंडरस्टैंडिंग तक लेके आई है। बी क्यूरियस, बी कंपैशनेट, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, सो वी शुड कोऑपरेट and have passion or love or affection for all, because we are part of the same creation. And third point I will suggest to all the viewers, well, keep on asking questions. आप क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डू नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, लाइफ को समझना चाहते हैं, फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा जो शुरू में जिस कोटेशन ने मुझे मोटिवेट किया, ए लाइफ दैट इज़ अनएग्जामिन्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेट्स ने अपनी जान दे दी थी इस बात के लिए कि भाई मैं जो है क्वेश्चन पूछने से नहीं रुकूंगा। तो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। एक्चुअली क्या सर, ये जो टॉपिक है ना, ये 1 घंटे में तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो दिनों सालों चाहिए होंगे। तो आई थिंक हम इनजस्टिस करेंगे इसको अगर हम एक ही एपिसोड करेंगे इसका। हम डेफिनेटली इसके और एपिसोड्स करेंगे और जिसमें हम इसी बुक को ब्रेक करना चाहेंगे। बट मैं अब चाहूँगा कि हम फिनिश करें इस पॉडकास्ट को। बट बिफोर आई फिनिश, आई वॉन्ट टू नो 2 थिंग्स फ्रॉम यू। एक, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, और दूसरा, अगर कोई सीकर आपको रीच करना चाहता है तो क्या आपकी कोई वेबसाइट, कोई ईमेल आईडी, कोई है तरीका, और ये बुक वो कहाँ खरीद सकता है, आप प्लीज़ ये बताएं। हाँ, देखिए मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि बहुत लोगों ने इस बुक को मांगा है हिंदी में। अच्छा। क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे जो है इंडिया में लोग हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये किताब मैंने हिंदी में लिखी है, थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, और वो दिसंबर तक वो बुक जो है अवेलेबल हो जाएगी अमेजोन पे। और ये किताब ग्लोबली अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अमेजोन पे ये यूएस में, यूके में बहुत सी जगह इसकी सेल भी हो रही है। साइंटिस्ट लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो ट्रुथ सीकर है वो इसको पढ़ रहे हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ओके, वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है। और ये किताब किंडल पे फ्री में आप पढ़ सकते हो। ओह, वेरी नाइस। यस, इट इज़ फ्री ऑन किंडल अनलिमिटेड। Very nice. और आप इसकी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। Okay. और जैसा कि अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन जितने मर्जी कर सकते हो, मुझे सीधा लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी नोट करो, author jcgoel@gmail.com।